ये चीज़ें इसके ध्यान में कब आता है? जब बार-बार इसको सीढ़ी चढ़ने में या हज़ार 10-10 हज़ार रुपया इसके अकाउंट से खत्म होने लग गया या घर में कैश रखा है, वहाँ से 10-10 हज़ार रुपया खत्म होता जा रहा है और तब इसके समझ में आ जाता है कि अब अगर ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दिया, फिर वो क्या होता है केयरफुल हो जाता है। फिर केयर करने लगता है, घुटनों में मालिश करने लगेगा, थोड़ा-सा आयोडेक्स लगाएगा या जो भी पेन किलर वो जो मलहम है या सेक लेगा या कुछ-कुछ करता रहेगा। जो केयरफुल हो गया। अब जब केयरफुल होने के बाद भी इसका खर्च होता जा रहा है, चलने में असुविधा हो रही है, तब इसके दिमाग में डर बैठेगा कि यार अब डंडा लेके चल रहा हूँ, अब हो सकता है कि अब मैं चल भी ना पाऊँ। तो फिर अगेन ये delusion thin is getting से सीधा delusion wants fear poverty of and delusion wants he will come। ये जितना भी हम लोग केस किए सब में करीब करीब वही है। Remain fabulous that he does not bother much neglect his business even drinking daily, but by such repeated action he will understand his position when say he has only 10,000 rupees left with him only in his pocket, then the state comes। जब इस तरह से हो जाता है एकदम से कंडीशन ये पॉवर्टी वाली आ जाती है, तब उस समय क्या क्या रूब्रिक होता है। तो क्या होता है उस समय का, तब उसके दिमाग में केयरफुल हो जाता है, तब उसके दिमाग में आता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, सारा पैसा खत्म कर दिया, अब कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा। तब अपने आप में खुद एक तरह से ना भूल का उसको समझ में एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो एलिमेंट फ्रॉम एम्बरासमेंट एंड डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन में भी सल्फर है। थोड़ा देखिए तो है क्या सल्फर? शायद नहीं है, लेकिन यहाँ एलिमेंट फ्रॉम एम्बरासमेंट होता है कि अरे मैंने किया क्या, सब खर्च कर दिया, खत्म हो गया सब मेरा। तो डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन के बाद ये बात समझ में आती है कि मैंने किया क्या। सल्फर आंसर सर। हाँ वही जो delusion wrong has done, that's why ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಈ embarrassment হয় কেন করলাম এইসব, তো করা দরকার ছিল না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার, বুঝছো? মানে মানে ওয়েলথ থাকলে কি করে, চিন্তাই করে না, ধ্যানই দেয় না। আর যখন দেখি যে বারবার ওই ওই জিনিসটা হচ্ছে ওয়েলথটা ঘটে যাচ্ছে, ইনজুরি স্টার্ট হয়েছে মানে 10,000 টাকা 5,000 টাকা ডেইলি ডেইলি খরচা করে করে এটা তো ইনজুরি হলো না, আর ইমাসিয়েশন হচ্ছে। কখন মনে পড়ে, কখন মনে পড়ে যখন 40,000 হয়ে যায়, তখন লাগে আরে আমি তো ধীরে ধীরে সব খরচা করে দিলাম, কোনো ইনপুট নাই। তো ট্রেনিং হয়ে গেছে আমার। আর যদি আমি খরচা করবো ট্রেনিং হয়ে যাবে, তাহলে কেয়ারফুল হবে। কারণ বারবার এই 10,000 5,000 করতে করতে রিপিটেশন হচ্ছে খরচা, ভুলটা যখন এনালাইজ করে যে আমি এইসব জিনিস থেকে ভুল করে যাচ্ছি, ঠিক আছে, তাহলে ওই সময় ঠিক আছে, আর কি ফেমের পলিটি এই সব চলে যাবে তো। এখন এরকম যদি আমি এই স্টপ না করি এখানে, তাহলে তো সব চলে যাবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ডিলিউশন ওয়ান্স হি উইল কাম, বিজনেস টক্স অফ, তখন তখন ওই মনে আসবে না এরকম খরচা করলে তো হবে না, কিছু তো লাগাতে হবে, ঠিক আছে। বিজনেস টক্স অফ, তাহলে দেখুন, আর এই হচ্ছে বড় থেকে যখন ছিল পয়সা টাকা পুরা বেশি, হেলথ ভালো ছিল, তাহলে তো কোনো অসুবিধা হয়নি। তখন বার্গেনিং শুরু করি না, এইরকম সিঁড়ি চললে হবে না, সিঁড়ি উপরে যাওয়া না, খুব কাজ হয় তাহলেই যাবো, খুব অবশ্যই কাজ হয় তাহলেই যাবো, একবার আর নামবো না এখান থেকে। এসব হচ্ছে বার্গেনিং, ঠিক আছে। Now I am young, who is patient. Now I am young enough and can tolerate it enough.
कितना भी काम कर लीजिए, कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, मैं तो कर लूंगा, तो मैं जंग कर सकता हूँ। बट आई फियर हु विल लुक आफ्टर मी व्हेन आई विल बी ओल्ड। बोलो, अभी तो सब ठीक है, नौकरी है, जवान हूँ, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा हो जाऊंगा उस समय मेरे को कौन देखभाल करेगा? आई फियर विल लिव ट्रिपल माई एज। ऐसा डर लग रहा है कि मैं एकदम से बिस्तर पकड़ लूंगा, चलने फिरने लायक नहीं रहूंगा। ये है कि delusion wants will come. Poverty and delusion wants will come. When I get exhausted, I stop and all activity goes for rest, which ameliorates. যখন আমি একদম অ্যাডজাস্ট হয়ে যাই, তাহলে কি করি? একটু রেস্ট করতে চলে যাই। ওই রেস্ট করলে মানে শুয়ে পড়লে আমার একটু আরাম ভালো লাগে। Quiet wants to be repose and tranquility desire. তবে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, যখন দেখি যে আর হবে না, একদম এক্সস্ট হয়ে গেছে, তাহলে গিয়ে আমি রেস্ট করি। और सल्फर का क्या है? ये दो रूल, अम्यूजमेंट, अवर्सन टू। जब इसको रेस्ट चाहिए तब क्या करता है? शांति के लिए कुछ गाना वाना, कुछ आसपास कुछ नहीं बजाओ, गाना भी मत बजाओ, कैसा भी गाना हो मत बजाओ, इसको गाना भी अच्छा नहीं लगता है। या कोई घर में लोग बैठ कर गपशप मारते, वो भी अच्छा नहीं लगता है। चुपचाप का आप जाके ये दो रूब्रिक लगाएंगे, अम्यूजमेंट, अवर्सन टू एंड क्वाइट वांट्स टू बी, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, तो आपको सल्फर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको जब इसीलिए बोलते हैं ना, अम्यूजमेंट नहीं चाहिए, म्यूजिक अवर्सन है, सल्फर को म्यूजिक नहीं चाहिए, रिलीजियस रिलीजियस म्यूजिक चाहिए। रिलीजियस अगर गाना बजा देगा तो ठीक है, थोड़ा भजन वगैरह या कोई भी रिलीजन का जो गाना है वो बजा दो, फिर ये चुपचाप से अपना सुनता रहेगा और उसी में इसलिए ये इन्वेस्टमेंट अवर्सन है। ठीक है, एक लेडी है 56 ईयर ओल्ड, और थोड़ा सा ट्रेस करते हैं, थोड़ा और ज्यादा समझते हैं। जॉइंट पेन, नी पेन, जॉइंट पेन, नी पेन है और जॉइंट पेन बहुत अच्छा। जस्ट मैंने যেরকম क्वेश्चन करी कैसे है यही বলার কথাটা এই তো এরকম, এই তো মানে घुटने में दर्द है, हाथू ব্যথা করছে, हाथू ব্যথা আছে, और जॉइंट गुलो पेन করে, जॉइंट में दर्द। सुबह बिस्तर से उठते हुए थोड़ा कम फुर्ती से उठ पाती, সকালে যখন উঠি ওরকম মানে फटाफट उठতে পারি, झट করে उठे যাবো ওইটা হয়, ठीक है, फुर्ती से उठ नहीं पाती, लगता है बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ो हो गई एरकम। 56 ईयर ओल्ड लेडी, पहले तो मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती, पर अब वैसे नहीं कर पाती। আগে তো আমার নিজের কাজগুলো না ফটাফট করে নিতাম, এখন ওরকম হয় না, আগের মতন করতে পারছি না। এরকম সিপিয়া যখন এটা বলবে কেমন বলবে? আমি যে আগে যেরকম করে নিতাম আর হচ্ছে না, ঠিক আছে? এইভাবে সিপিয়া, এই পুয়ার ফিলিংটা খুব বেশি হয় সিপিয়া। আগে আমি সব কাজ করে নিতাম, এখন আমার তো নিজেই করতে, নিজের কাজে বাড়ি, এরকম এখানে সেম সেম সেন্টেন্স হবে কিন্তু খুব সিরিয়াসলি বহুত হেল্পলেস ফিল হবে, মানে শরীর ঠিকই আছে, সব দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে, হাত পাও সব ঠিক আছে, কোনো ব্যথা নেই, কিন্তু এখন আমি নিজের কাজটাও করতে পারছি না। এরকম একটু মানে দুঃখিত হয় এরকম কথাটা। और আর যে মানে আগে যেরকম
अपना सारा काम जल्दी-जल्दी कर लेती थी, पर अब मैं वैसे नहीं कर पाती हूँ। ये रो-रो के नहीं बोल रहे, दुखी होके नहीं बोल रहे, बस वैसे नहीं कर पाती हूँ। तो आगे जैसे कर लेती थी না, वैसा अब नहीं कर পারছি। এখন আগের মতন করতে পারি না। কিন্তু এখনো বেল্ট দেখাচ্ছে, ইগো দেখাচ্ছে। তারপর সবসময় যখনই আসবে ইগো দেখাবে। ওই বলেছিলাম না রিক্সাওয়ালার বাবু কিরকম বলছিল, আমার ছেলে রিক্সা চালায়, আমার বৌমা আমাকে খুব ইয়ে করে, মানে ভালো মতন আমার খাওয়া-দাওয়া খুব আমার মানে আমার চিন্তা খুব করে। একদম গরম ভাত-ডাল খাওয়াবে আমাকে, এরকম বলছে। এই যে ইগো আছে, বেল্ট আছে, বেল্টের সঙ্গে সবসময় একটা ইগো থাকে সালফার উইদাউট ইগো সালফার হবেই না। বেল্টের ইগো হয়, এমনি না যে আমি দেখানোর কিছু। ওই বেল্ট আমি একদম ভালো আছি। হাঁটু ব্যথা করতেছে, জয়েন্ট পেইন আছে, তাও আমি আগে যেরকম কাজ করে নিতাম, কাজ এখনো করি। এরকম নাই যে করি না, কিন্তু আগের মতন করি। এইরকম কথা। এই ইগোটা দেখাবে সবসময়। ঠিক है? और मैं ना এরকম, मैं ना प्रभु ये আমি না मैं ना भूलने भी लगी हूँ। मैंने बोलने का तरीका देखिए कितना ये ईगो के साथ वेल्थ दिखाता है। मैं ना भूलने भी लगी हूँ। इसका मतलब कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। মানে এটার মিনিংটা কি হলো? আমার মেমোরি পাওয়ারটা কমে যাচ্ছে। आजकल बीमारी का अटैक भी जल्दी-जल्दी आने लगा है। ঠিক है? এই যে আমি ডালনেস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন অনলি আফটার রিপিটেশন আমরা করলাম, এইখানেও এইটা আসবে। এখন बीमारी का अटैक কি হচ্ছে? जल्दी-जल्दी हो रहा है। पहले कुछ टाइम से होता था। टाइम लगता था। 1 सप्ताह में 1 आध बार दिक्कत हो जाता था घुटना में। अभी क्या हो रहा है? अभी जल्दी-जल्दी हो रहा है। मतलब क्या? रिपीट हो रहा है बार-बार। तब इसके समझ में आया कि भई ये रिपीट हो रहा है और बार-बार हो रहा है। तब इसके समझ में आ गया, तब ये आ गया डॉक्टर के पास केयर लेने के लिए कि ठीक करना है। जब इसको लगा कि नहीं अब कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या हो रहा है? डेलूजन थिन इज़ गेटिंग, है ना? यही है, सब में आपको ना एक ईगो के साथ वेल्थ दिखेगा, एमेसिएशन हो रहा है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। जब वेल्थ के साथ आपके पास आ रहा है और जब इमेसिएशन भी शुरू हो गया, तो भी ये नेग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि अरे यार ये सब क्या चीज़ है। मैं इतना हेल्दी था, इतना यंग हूँ, अभी भी तो मेरा उम्र ही क्या हुआ, ऐसा। लेकिन जब बार-बार रिपीट हो रहा है, बार-बार कोई चीज़ कहीं रख दे रहा है, भूल जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ रखा। ध्यान ही नहीं आ रहा, पता है कि रखा हूँ कहीं पे, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब कमज़ोर हो रहा है। जब माइंड मतलब मेंट याददाश्त उसका कमज़ोर है, मेमोरी पावर कमज़ोर होता जा रहा है। ये चीज़ इसके दिमाग में कब बैठता है? जब बार-बार रिपीट हो रहा है। तो यही है डलनेस। उसको समझ में नहीं आ रहा था। डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपिटिशन। 3-4 या अब जल्दी-जल्दी हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है? इसके दिमाग पे स्ट्राइक कर रहा है कि अरे यार तुमको तो बार-बार ये चीज़ हो रहा है। तब इसके समझ में आया कि नहीं भाई ये कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ भी सारा रूब्रिक आएगा, लेकिन मैंने 2 ही रूब्रिक 3 रूब्रिक लिया है। delusion, thin is getting and dullness understand the question only after repetition and delusion injured being injured। ठीक है? यहाँ पे क्या-क्या स्टेटमेंट? घुटने का दर्द, जॉइंट पेन। पहले जितना काम मैं जल्दी-जल्दी कर लेती थी, अब नहीं कर पाती हूँ। और मैं ना ऐसा थोड़ा इस तरह से बोलते हैं ना, मैं ना डॉक्टर बाबू मतलब भूलने भी लगी। याद इसका मतलब है कि याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। चाबी कहीं रख देती हूँ, पता ही नहीं लगता कहाँ रख दिया। स कुछ पैसे कहीं रख देती हूँ, पता ही नहीं लगता कहाँ रख दिया। फिर बहुत देर के बाद ध्यान आता है वहाँ है। आ जाता है, लेकिन बहुत देर के बाद याद आता है। और जब इस तरह की चीज़ें होने लगी और बार-बार जल्दी-जल्दी होने लग गया, तब ये केयरफुल हो गया। तब ये डॉक्टर के पास आ गया
क्योंकि इसको अब लगने लगा कि नहीं, मेरे वेल्थ में कमी आ रही है। तो delusion, thin is getting, and delusion injured being injured because dullness understand the question only after repetition. ठीक है? भाई ये इंजुरी हो रहा है और ये हो रहा है, सब समझ में कैसे आया? क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना? थोड़ा सा ऐसे समझना है इस चीज को। इसका मतलब ही है कि बीमारी बढ़ रही है, मतलब पेशेंट खुद बोल रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब इसका मतलब মানে এইটা তো মানেটা তো এইটাই হলো যে আমার অসুবিধাটা বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, और बीमारी से लड़ने की शक्ति घट रही है। वही जो मैं बताया था कि पेशेंट को क्या पहले एक टैबलेट से सर दर्द ठीक हो जाता था या घुटना दर्द ठीक हो जाता था, है ना? पेशेंट का एक टैबलेट खाने से पैर दर्द, सर दर्द या घुटना दर्द जो भी दम बीमारी है वो ठीक हो जाता था। अब 2 टैबलेट खाने से भी नहीं ठीक हो रहा है। टैबलेट तो वही है, लेकिन आपका शरीर में पावर कम होता जा रहा है। आपको वो टैबलेट से रिएक्शन करने में 2 टैबलेट भी अब आपके शरीर में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ है। टैबलेट तो वही है। पेशेंट आके बोलते हैं ना इस तरह से, डॉक्टर साहब 1 टैबलेट खा लेता था, सर दर्द ठीक हो जाता था। अब 2 टैबलेट खाने से भी नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? आपकी शक्ति कम हुई है, पेशेंट की शक्ति कम हो रही है। इसलिए वो अलर्ट हो गया, तब आपके पास आया। 3 टैबलेट खा लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब आपके पास आया, केयर करना शुरू किया। अब उसको लगा कि नहीं, अभी वेल्थ मेरा खत्म होने वाला है, पॉवर्टी में चले जाएंगे। अगर ऐसे ही टैबलेट खाना है तो 4 टैबलेट खाने से भी सर दर्द नहीं होगा, तो चलो अभी डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है? और कुछ? देखो, इसीलिए मैं बार बार देखिए घूम फिर के ना बातें वहीं आ जा रही कि कैसे इमेसिएशन के साथ साथ थिनिंग होता है। अभी और कुछ डॉक्टर साहब, पहले हमारे पास 3 मकान थे, 3 तो मकान था मेरे पास, सब कुछ बढ़िया था, सब কিছু ভালো, একদম ভালো মতন চলছিল, 3টা बिल्डिंग ছিল আমার। फिर मेरे पति ने मरने के बाद मेरे जेठ फिर मेरे पति के मरने के बाद मेरे जेठ ने 2 मकान कैप्चर कर लिया। फिर मेरे जेठ ने, मेरा हस्बैंड का बड़ा भाई, 2টা मकान ক্যাপচার করে নিয়েছে। ঠিক আছে? আমার 3টা मकान ছিল আর 2টা मकान কে করেছে? ক্যাপচার করে নিয়েছে जेठू। कैप्चर कर लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। আমরা কিচ্ছু করতে পারলাম না। এই হেল্পলেসনেস ফিলিং আছে স্বল্পতে? দেখো তো একবার। नहीं सर। नहीं, हाँ, ठीक है। तो कैप्चर कर लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। আমি কিচ্ছু করতে আমার যখন স্বামী মারা গেছে, তারপরে আমার জেঠু উনি 2টা 3টা মকান আমার নামে ছিল, মানে হাসব্যান্ডের নামে ছিল। তাহলে এখন ওই 2টা আমার জেঠু कैप्चर করে নিয়েছে। ठीक है? अब उनकी नज़र अब उनकी नज़र अब इस मकान पर भी है। जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ওখানে থাকি ওই ঘরটাও ওনার এখন উনি নিতে চাচ্ছেন। पहले आस-पास के लोग में भी हमारी बात चलती थी। आसे-पासे लोग মানে ৩টা বিল্ডিং, একটু লোক ভাবে যে হ্যাঁ ভাই আমার হাসব্যান্ড ৩টা বিল্ডিং আছে সিটিতে, তাহলে তো কথাটা তো বড় বড় হবে। ঠিক আছে? बात चलती थी, पर अब पास पड़ोस वाले भी वैसी
पास पड़ोस में भी वैसा अपना पावर, अपना ये धाक नहीं रहा। पहले आसपास का लोग भी हमारा मतलब कि हमारा वेल्थ था, हमारा इज्जत था, रिलेशन अच्छा था, लोग आते जाते थे हमारे यहाँ, हम भी उनके यहाँ आते जाते थे। अब वो क्या हुआ, वो रिलेशन कम हो गया, पहले वाला बात नहीं है। पहले लोग हमें नमस्ते, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल ऐसे बोलते थे, या नमस्ते दीदी, नमस्ते दादा, ऐसा बोलते थे। लेकिन अब लोग मेरी तरफ से हटने लगे, मतलब रिलेशन में कमी आने लगे, भागने लगे, हम लोग कमजोर हो गए। ठीक है, पहले क्या वेल्थ के कारण, हस्बैंड भी तो एक वेल्थ है किसी भी लेडी के लिए, हस्बैंड क्या वेल्थ है, भाई हस्बैंड है मेरा। अभी हस्बैंड नहीं होने से क्या हो, ऐसे ही आधा जान तो खत्म हो गया, हाफ पोर्शन तो गया लाइफ का। तब अब वो तो स्ट्रेंथ है नहीं, हस्बैंड के साथ जो स्ट्रेंथ था वो तो नहीं रहा। हम लोग कमजोर हो गए, अगर यह मकान भी गया तो हम बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे। अगर ये मकान भी मेरा जेठो किसी तरह से मेरे से कब्जा कर लिया तो हम कहाँ रहेंगे, हम तो एकदम से पॉवर्टी वाला कंडीशन आ जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। आस पड़ोस के लोग भी हम पर हावी हो जाएंगे, आस पड़ोस के भी जो लोग हैं वो हमारे ऊपर दबाव डालने लगेगा, कुछ कुछ बोलने लगेगा हम लोग को, मतलब दबाव चापने लगेगा। ये चीज अब इसके दिमाग में चल रहा है, फिर तो हम मांगने वाली कंडीशन में आ जाएंगे। फिर तो हम भैया हस्बैंड है नहीं, और जो घर था वो तो दो चला ही गया, अभी तीसरा घर पे भी मेरे जेठ का नजर है, अब ये भी चला जाएगा तो फिर तो एकदम से पॉवर्टी वाली कंडीशन एंड डिल्यूजन वांट से भी भीख मांगने वाली कंडीशन हो जाएगी डॉक्टर साहब, हम खाएंगे कहाँ से, ठीक है से सड़क पे आ जाएंगे। इस तरह पेशेंट का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, আর delusion wants she will come to। ঠিক আছে, এরকম আমরা রুব্রিক তো আমরা জানছি কি রুব্রিক নিতে হবে, কিন্তু ये ফিলিংটা আসবে কোথায় থেকে, ঠিক है? तो यहाँ पे देखिए, जब भी सल्फर पेशेंट अगर बोले मतलब থিনিং हो रहा है, শরীর শুকায় যাচ্ছে, এরকম বলে যাবে, ওরকম যদি আমরা নিয়ে নিই তাহলে কাজ হতেও পারে, কিন্তু এ নাই যে 100% কাজ করবে, এরকম নাই। এরকম লাগলো যে শরীরটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ? আমি কাজ করতে পারছি না। এইসব যদি বলে তাহলে নাও লাগতে পারে সালফারটা। কিন্তু ওর সঙ্গে এইটা যদি হয়, এই जिन्हें सल्फर पेशेंट शारीरिक फिजिकली पतला हो रहा है या सूख रहा है तो जरूरी नहीं कि उसको सल्फर ही लगेगा, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ये देखिए, इसके साथ साथ उसे लगे कि उसकी ताकत, पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है, उसकी ताकत, पावर या स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तभी हम डिल्यूजन थिन इज गेटिंग लेंगे। यह लगता है थिनिंग ही उसको इंजुरी का एहसास करा रही। क्या हो रहा है, यादाश्त भी कमजोर हो रहा है, मेमोरी कम होता जा रहा है। एक टैबलेट खाने से क्या हो रहा है, ठीक हो जाता था, अब एक टैबलेट खाने से ठीक नहीं हो रहा है, दो टैबलेट खाने से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, शरीर का पावर कम हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है। इसीलिए आपको ये थिनिंग के साथ साथ ये दिखना होगा कि इसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है, पावर कम हो रहा है, तभी आप ये सर पर देंगे कि ठीक है शरीर दुर्बल हो रहा है लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा बोलने से तो सर पर नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें और चीज जोड़ना चाहिए कि कुछ इंजुरी हो रही है, जैसे घुटना का दर्द है, सीढ़ी चढ़ना, पैदल चलना, थोड़ा ऊंचा नीचा जगह पे दिक्कत हो रही है, पहले ऊंचा नीचा जगह में भी चला जाता था आराम से, अभी क्या हो रहा है, ऊंचा नीचा जगह में भी दिक्कत हो रहा है, तो ये इंजुरी हो रहा है ना, ये साथ साथ होते रहना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि पहले घुटने में ताकत था तो आराम से चलते थे,
शरीर में ताकत था तो एक टैबलेट से शरीर फटाफट ठीक हो जाते थे। अब शरीर में तो ताकत है नहीं, स्ट्रेंथ खत्म हो गया। उस मेडिसिन का रिएक्शन करने के लिए जो शरीर में ताकत चाहिए, पावर चाहिए, वो तो खत्म हो गया, वो कम होता जा रहा है। इसीलिए तो मेरा अब 1-2 टैबलेट से भी काम 2 टैबलेट लेना पड़ रहा है। कल को पता लगा 3 टैबलेट लेना पड़ेगा, है ना? ये स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, थिनिंग के साथ-साथ इंजुरी भी दिखना चाहिए। ठीक है जी? ठीक है? थोड़ा बोलो भाई। हैं? मुझे রামানদা রামানদার শরীর ঠিক নাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বুঝে গেছো এটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝছেন তো যে থিনিং কি হয়? হ্যাঁ, মানে ইনজুরিকে সঙ্গে, সঙ্গে থিনিংটা দেখতে হবে। আর স্ট্রেংথটা কমে যাচ্ছে। মেমোরি পাওয়ারটা কমে যাচ্ছে। ট্যাবলেট খাওয়া মানে এক ডোজ খেলেই আমি ঠিক হয়ে যেতাম। এখন হচ্ছে না। 4 ডোজ খেতে লাগে, 3 ডোজ খেতে লাগে। ঠিক আছে? चलो और एक केस देखिए। पेशेंट को हमें समझना है, ये चीज ध्यान रखना है बस कि पेशेंट একটা রুবিক্স বলছে ডিলিউশন ওয়ান্টস নাকি এটা ডিলিউশন ওয়ান্টস হি উইল কাম टू মানে এইটা দু লাইন বলুন তো স্যার। रोड पे आ जाऊंगी। अगर मेरा ये भी 3 मकान था और मेरे जेठ ने 2 मकान पे कैप्चर कर लिया। अब चूंकि उसके भाई के नाम पर था, अभी भाई के नाम से होगा कि भाई नहीं ये तो कंबाइंड प्रॉपर्टी था, इसलिए ये हमारा है। इस तरह से करके उसने दो बिल्डिंग उसका ले लिया। अब तीसरे पर भी उसका नजर है कि इसको निकालेंगे यहाँ से। अगर ये हो गया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। ठीक है ना? दो तो घटते घटते थिनिंग तो हो गया। इसके पास जो स्ट्रेंथ था, आसपास का लोग में भी एक रुतबा था। इसका हाँ भाई इसका 3-3 बिल्डिंग है, इसका हस्बैंड इतना बढ़िया कमाता है। हस्बैंड मरने के बाद सब खत्म हो गया और धीरे-धीरे घटता चला गया। इसका समाज में इज्जत भी कम होता गया। ये सब कुछ दिखना चाहिए आपको। तो इज्जत जाने से क्या हुआ? अब लोग इसको पूछते नहीं है। मतलब क्या हुआ? इसके पावर में कमी आ गई। धीरे-धीरे इसके पावर में भी कमी आ गई। धीरे-धीरे अब लोग इससे दूर हटने लग गए। पहले इसके पास आते थे, बैठते थे, मोहल्ले की औरतें भी आके बैठती थी, गपशप मारती थी कि भाई इसके पास इतना प्रॉपर्टी था। इसीलिए क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी तो खत्म ही हो गया। अब एक ये बचा है, इस पर भी मेरे जेठ की नज़र है। तो लोगों को भी आस-पास पड़ोस के लोगों को भी पता लग गया यार इसका तो अब ये भी जाएगा। ये भी खत्म होने वाला है, तो इसलिए लोग आपसे दूर होते चले गए। मतलब रिलेशन में भी कमी आता, थिनिंग होना शुरू हो गया है। और धीरे-धीरे अगर यही थिनिंग चलता रहा और क्या होगा? फिर मैं वांट्स में आ जाऊँगा। डिल्यूजन पॉवर्टी में आ जाऊँगा, खत्म हो जाएगा। जो घर में पैसा-वैसा बचा है उसी से कुछ दिन तो चल जाएगा। लेकिन कितना दिन? फिर तो हम रोड पे आ जाएँगे, रहेंगे कहाँ? फिर माँगने वाली कंडीशन हो जाएगी, भीख माँगना पड़ जाएगा। ओह! अच्छा, अच्छा। ठीक है? वांट्स में क्या है? अब आपके पास कुछ नहीं है, अब आपको चाहिए। चाहिए, मतलब माँगना पड़ेगा। माँगना पड़ेगा। है ना? अब घर से अगर निकल गए, इस घर से निकल गए, तो हम जाएँगे कहाँ? हमारा तो कुछ कमाई नहीं है। मेरा हस्बैंड जो पहले कमाते थे, तो हम लोग उसमें आराम से रहते थे। वो तो कमाई का ज़रिया हमारा खत्म हो गया। लेकिन केवल खर्च ही खर्च हो रहा है। कुछ पैसे हस्बैंड ने बैंक में रख दिए थे या मेरे घर में है, उसी से काम चल रहा है अभी। और अगर इस घर से भी निकाल दिया तो फिर कहाँ? कहाँ रहूँगी मैं? भाड़ा के घर में रहना पड़ेगा। उतना पैसा कहाँ है हमारे पास? माँगने की स्थिति। माँगने की स्थिति। ये है वांट्स। उसी तरह से वांट्स में क्या हो जाएगा? जैसे घुटना दर्द है, आप अभी डंडा लेके चल रहे हैं, फिर भी अभी वो एक स्ट्रेंथ है कि आप चल पा रहे हैं। लेकिन जब डंडा लेके भी नहीं चलेंगे तो क्या होगा? बिस्तर में सो जाएँगे। तो आपको पानी, खाना किसी दूसरे से माँग के खाना पड़ेगा ना, कि भाई थोड़ा 1 गिलास पानी दे दो, भाई थोड़ा 2 रोटी दे दो। तो ये वांट्स है। डिल्यूजन वांट्स, ही विल कम टू। ठीक है ना? वो कंडीशन नहीं चाहिए। ठीक है सर? हाँ,
एक और केस देखते हैं। 45 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है, 45 ईयर ओल्ड। लंबर रीजन में दर्द होता है और पूरा बैक में फैलता है। ठीक है, यहाँ पे दर्द शुरू होता है और पूरा बैक में फैल जाता है ऊपर तक। ऐसा जैसे ही दर्द शुरू होता है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे आसपास ऐसा फैलने लगता है। तो जस्ट पूछिए कब से हो रहा है? बहुत सालों से हो रहा है। मैं इंजीनियर हूँ, एक बड़े होटल में जॉब करता हूँ। ठीक है, वो एक इंजीनियर है और एक बड़े होटल में काम करता है। वहाँ उसका क्या काम है, वहाँ जितना सेफ्टी इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसे फायर अलार्म है और भी सीसीटीवी कैमरा है, और ये अलर्ट के लिए है, ये सब लिफ्ट में जो अलर्ट लगा हुआ, अगर लिफ्ट बंद हो गया तो उसका अलर्टनेस जो दिखाएगा और सायरन बजने लगेगा, वो सब मैं देखभाल करता हूँ। मेरा काम वो है। सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हैं, वहाँ लगे हैं, उसकी देखभाल करना मेरा काम है। ठीक है, और और मेरे अंडर जो काम करते हैं उनको भी देखना है। तो और टेक्नीशियन सब है जो ये सब देखता रहता है, डेली चेक करना है, हाँ सब काम कर रहा है, नहीं करना है, नहीं कर रहा है, ये सारा कुछ काम उसका भी मेरे ऊपर ही जिम्मेवारी है कि भाई आपको ये सबको देखना है। होटल है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है और एक सुपरवाइजर बना हुआ है। तो सुपरवाइजर का काम क्या है कि अपना तो वो ये चीजों को एकदम अप टू डेट रखना है, और जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनका भी, उसके ऊपर भी इसको नजर रखना है, क्योंकि वो आपके अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, उनको भी देखना है। ऐसे में छोटे छोटे प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देता। इतना एनर्जी तो है इस इन सबको सहने के लिए। तो छोटा मोटा जैसे कुछ ये लोग गड़बड़ करता है, कभी नहीं आया, कभी किसी ने छुट्टी ले लिया, इस तरह का अचानक से छुट्टी ले लिया, तो मेरे को उधर उधर जाके ऊपर नीचे करना पड़ता है, सब जगह जाके चेक करना पड़ता है, ये सारा काम। फिर भी अभी तो इतना एनर्जी है कि मैं कर लेता हूँ, उतना ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई ना, उसका भी कुछ काम होगा तो नहीं आया, उतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ऐसे में छोटे छोटे प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देता। इतना एनर्जी तो है इन सबको सहने के लिए, पर कुछ दिन पहले अचानक से यह शुरू हो जाता है। पर देखता हूँ कि ये यहाँ से शुरू होता है और पूरा पीछे में बढ़ जाता है, फैल जाता है, अचानक से शुरू हो जाता है। और कुछ दिनों से देख रहा हूँ, फिर ठीक हो जाता है तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, उतना ध्यान मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ दिनों से यही है डलनेस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। जब कुछ दिनों से बार बार ये चीज हो रहा है, दर्द शुरू हुआ और ऊपर तक पूरा पीठ में, बैक में फैल गया, तो ये चीज मेरे को बार बार मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि ये हो रहा है। पर कुछ दिन पहले, हाँ, कुछ दिन पहले अचानक से ये शुरू हो जाता है और कुछ आधा घंटे के लिए रहता है। थोड़ा कुछ আধা ঘন্টা কিছু মানে আধ ঘন্টার মতন থাকে। মানে হঠাৎ করে শুরু হয় আর পুরো পিঠটা একদম স্প্রেড হয়ে যায়। আর आध घंटा মতন থাকে। ये थोड़ा-सा ये एक मतलब थोड़ा-सा इसको कंसर्न आया। सब ऐसे हो रहा है। तो मैं शुरू में सोचता था अरे यार हो गया ठीक है, 2-4 मिनट में ठीक हो जाता था, 10 मिनट में ठीक हो जाता था, 20 मिनट में ठीक होने लगा। फिर मैं अब देख रहा हूँ कि नहीं, ये बार-बार अचानक-अचानक से शुरू हो जा रहा है और आधा घंटे तक रहता है। ये आधा घंटा जो होगा ना, अब इसको लगा तो आधा घंटा बहुत टाइम हो गया। इसी तरह से छोटे-मोटे का मतलब क्या है? थोड़ा देर 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रहता था तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ उसके ऊपर। या कोई स्टाफ नहीं आया तो चलो मैं दौड़ के खुद ही कर लूँगा वो काम।
इतना तो मैं कर ही लूँगा, इतना सारा वायरिंग है, फिर भी मैं ध्यान है कहाँ पर क्या कौन-सा वायरिंग है, कौन-सा स्विच है, कहाँ पे कहाँ कनेक्शन है, ये सब चीज़ मेरे को ध्यान में। लेकिन वो हमारा टेक्नीशियन लोग करता रहता है, लेकिन मैं उसमें ध्यान रखता हूँ। लेकिन अभी क्या देख रहा हूँ कि ये अचानक से शुरू होता है और पूरे पीठ में फैल जाता है और अब आधा घंटा तक रहने लगा है। अब इसका ध्यान में शुरू हुआ। तो थिनिंग तो हो ही रहा था, इमेसिएशन हो ही रहा था, लेकिन वेल्थ के कारण से हर जगह देखिए ऐसा ही है केस। लेकिन यहाँ समझ में कब आता है? डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। केवल थिनिंग नहीं है इसके साथ, थिनिंग तो है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आधा घंटा जब रहता है तो ये भाग भाग के काम नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेंथ भी कम हो गया इसका। तकलीफ के समय स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसको बैठ जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही पेन के समय क्या करते हैं, जस्ट ऐसे ही काम करता रहता हूँ, पर यह दर्द बार बार क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछना शुरू कर दिया। अब इसको समझ में आया कि नहीं भाई, इसका पता कर। हाँ, ऐसे ही काम करता रहता हूँ, दर्द हो रहा है, आधा घंटा तक रहता है, फिर भी मैं करता रहता हूँ। मतलब ये क्या दिखा रहा है, अपना वेल्थ दिखा रहा है, अपने हेल्थ को दिखा रहा है कि नहीं अभी भी मेरे में स्ट्रेंथ है। लेकिन आपसे आके ये पूछता है कि यह दर्द बार बार क्यों हो रहा है, क्यों? डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। बार बार होने पर इसको समझ में आया कि भाई ये बार बार हो रहा है, अचानक से हो जा रहा है और आधा घंटे तक रह रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है ना बार बार। तब इसके समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हर समय एक ही तरह का दर्द, ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि हर समय एक ही तरह का दर्द। ये बोलने का तरीका कि एक ही रकम दर्द ব্যথা মানে কি হলো, মানে রিপিট হচ্ছে না, সেম সেম জিনিসটা রিপিট, এই হচ্ছে এই যে ব্যথাটা একই রকম ব্যথা, এই সেম জিনিস, সেম রিপিটেশন। তো টেলনেস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন অনলি আফটার রিপিটেশন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার আছে তো? डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन, ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, कि हर समय एक ही तरह का दर्द क्यों? ठीक है, मुझे अजीब लगता है এটা মানে मैंने कहा अजीब लग मतलब अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है, क्या है ये, क्यों एक ही तरह का दर्द होता है, एक ही जगह से उठता है और पूरा पीठ में शुरू हो जाता है और फिर दर्द दर्द, मतलब है क्या ये? मुझे अजीब लगता है, मैं सुबह योगा और वॉकिंग करता हूँ, ऑफिस में भी बैठता नहीं, घूमता रहता हूँ ना, ये दिखा रहा है कि मैं सुबह योगा करता हूँ, वॉकिंग के लिए जाता हूँ और ऑफिस में बैठता नहीं हूँ, करता रहता हूँ कुछ ना कुछ काम, ऐसे बैठ के टाइम पास नहीं करता हूँ। ठीक है, दर्द के समय मैनेज कैसे करते हो, ये सब क्वेश्चन अब आजकल ना कि चिंता আর ভয় এইসব জিজ্ঞেস করলে ওর থেকে ভালো আছে যে আমরা এইরকম কথাটা বলি কি আপনি ম্যানেজ কি করে করেন। ঠিক আছে, লোক ভালো মানে ভালো পাবে না, তাই জন্য এটা এরকম করবো আমরা। दर्द के समय मैनेज कैसे करते हो? बर्दाश्त करता हूँ दर्द को, एरकम बोलते हैं, बर्दाश्त करता हूँ दर्द को। मैं अभी भी इसका देखो कैसे आप बात करते हैं इससे, वो ईगो नहीं जाता है सल्फर का। ठीक है, ईगो दिखता ही रहेगा आपको सल्फर में, भले वो कितना भी बुरा कंडीशन। ऐसे ही मैनेज करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ दर्द को। मैं वैसा नहीं हूँ कि दर्द को लेकर सीन क्रिएट करूँ कि नहीं सर आज मेरे को छुट्टी दे दो, मेरा पीठ में दर्द हो रहा है, मेरा कमर में दर्द हो रहा है, मैं अभी जाऊँगा घर, मेरा दिक्कत हो रहा है। मैं वैसा नहीं हूँ कि वहाँ पे जाके बॉस के सामने या लोगों के सामने ये बोलूँ कि यार आज मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को दिक्कत हो रहा है। तो ये सीन क्रिएट करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? ये चीज़ें, ये बातें करता है।
आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे इस दर्द को कंट्रोल करने में मेरी कुछ सहायता करें। देखिए, देख रहे हैं? आपके पास इसलिए आया हूँ कि ये दर्द को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में आप मेरा सहायता करें, ठीक है? आप मेरी सहायता करें। मेरे को आपसे मैं भीख माँगने नहीं आया हूँ, प्रे करने नहीं आया हूँ। आप मेरा हेल्प कर दीजिए, इसको ठीक करने के लिए। देख रहे हैं कितना ईगो ज़्यादा, वेल्थ भी दिखाना है साथ में ईगो बहुत ज़्यादा। आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे इस दर्द को कंट्रोल करने में मेरी कुछ सहायता करें, सो दैट यह दर्द मुझे बार-बार परेशान ना करे। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? देखिए, क्या है इसमें कितना ज़्यादा, एक तो ईगो बहुत ज़्यादा है, पोम्पस इम्पोर्टेंस। मैं वैसा नहीं हूँ जो कि दर्द हो गया तो सीन क्रिएट करूँ, लोगों को दिखाऊँ कि अरे मेरा दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू डू दैट। सीन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? और इसके कारण से अब मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि आप बार-बार मेरे को ये क्यों हो रहा है, और आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं। आप मेरी कुछ हेल्प करिए इस दर्द को ठीक करने में। तो एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, परसिवरेंस। क्या करते हो? काम करता रहता हूँ दर्द के समय भी। मैं सीन क्रिएट नहीं करता हूँ, ऐसे ही में काम करता रहता हूँ। तो कंटिन्यू रहता है, परसिवरेंस। बैठ नहीं जाता हूँ, करता रहता हूँ काम। एंड डिल्यूजन वेल्थ ऑफ एंड कैरी डिजायर टू बी कैरिड। अब मैं इसलिए आऊं कि आप मुझे इस दर्द को कंट्रोल करने में मेरी सहायता करें, कुछ सहायता करें। ऐसा नहीं कि फुल सहायता करें, कुछ सहायता करें। मतलब इस कंडीशन से, ये जो पेन वाला कंडीशन है, इससे निकाल के मेरे को अच्छे वाले कंडीशन में डाल दें, ठीक है? ये होता है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। पेशेंट हमारे पास गोद में लेके इधर से उधर करने के लिए नहीं आता है। ये जो एडवर्स कंडीशन है, बीमारी का कंडीशन है, उससे निकाल के मेरे को अच्छा वाला कंडीशन में डाल दो। इसके लिए आपके पास पेशेंट, ठीक है ना? हो गया? अभी देखिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। थोड़ा सा एनालिसिस है, मैं एक बार में फटाफट पढ़ देता हूँ। सल्फर अपने नेचर में अपने आप को, नेचुरल जब रहता है ना, तो अपने आप को हर चीज से वेल्दी समझता है, हर चीज से। जैसे ये लेडी का, जिसका जेठ वो सब, तो पहले मेरा बहुत रुतबा था आसपास में, लोगों में मेरा एक इज्जत था, है ना, वेल्थ था, ऐसा। तो रिलेशन में भी वेल्थ था, पैसा भी, तीन मकान था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, दो ले लिया, अब तीसरे पे भी नजर है, ठीक है ना? तब ये अलर्ट हो गई लेडी। उसके कारण से इसको बीमारी शुरू हो गया। अपने आप को हर चीज से एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग समझता है, किसी चीज की बहुत अधिक मात्रा में होने की बात करता है। सब केस में हम लोग देख रहे हैं कि है, था मेरे पास, या अभी भी है। मैं उतना अभी उससे सीन क्रिएट नहीं करता हूँ। दर्द है तो है, उसी में काम करता रहता हूँ। साधारण रूप से यह कमी भी अपने बिजनेस, प्रॉपर्टी या लिमिटेशन की बात नहीं करता, कभी भी अपना, साधारणतः ये अपना बिजनेस मेरा कम हो रहा है या हो रहा है, प्रॉपर्टी में चला जाऊंगा, ये सब की बात नहीं करता। जब तक कि उसे लगता है कि उसके पास जीवन में हर चीज है, तब तक कि उसको लगता रहता है कि मेरे पास सब चीज है, और वो भी अबंडेंस, अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा है। तब तक उसे लगता है उस पर संसाधन, रिसोर्सेस, मनी, एनर्जी, पीपल, नॉलेज, तब तक उसके पास पूरा चीज है, मनी है, पीपल है उसके पास, दोस्त हैं उसके, हैं, एनर्जी है, और नॉलेज है। सबसे बड़ी बात है, सल्फर को नॉलेज का बहुत अभिमान होता है, ईगो होता है। तब तक वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि नेग्लेक्ट करता है। Delusion, abundance of everything she has. Delusion, tall he is. Delusion, wealth of. The business neglected his. Indifference, apathy, business affairs too. And aversion, education too. मतलब कोई उसको नॉलेज ज्यादा मत दो, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, ऐसा।
aversion education to सल्फर पेशेंट की प्रॉब्लम शुरू होती है जब उसकी लंबी बीमारी चलती रहती है। ठीक है, जैसे इसका है कि चल रहा है, तकलीफ, कमर दर्द हो रहा है, ये लेडी का भी जो घुटना में दर्द हो रहा है और मेमोरी थोड़ा कम होता जा रहा है, फिर भी बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा उस पे। तब सल्फर पेशेंट की प्रॉब्लम शुरू होती है जब उसकी लंबी बीमारी चलती रहती है और उसके कारण वो अपने बिजनेस की देखभाल नहीं कर पाता है। उसका जो भी काम है, घर का ही काम है, लेडी का घर का काम है, वो पहले जैसा नहीं कर पाती है। और कोई बिजनेसमैन है, ऑफिस नहीं जा पा रहा है और उतना भाग भाग के काम नहीं कर पा रहा है जो वो कर पाता था। वो अपने बिजनेस की देखभाल नहीं कर पाता है और उसके इनकम में धीरे धीरे कमी आने लगती है ना, थिनिंग होने लगता है, उसके रिसोर्सेस में कमी आने लगती है। अब इस पॉइंट पर सल्फर पेशेंट को बिजनेस की चिंता होने, तब इसको चिंता होने लगती है कि नहीं यार, ये बिजनेस अगर मैं ये सही करता रहा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, चिंता होने लगी। सल्फर हमेशा वेल्थ दिखाएगा पर उसे आने वाले समय में कमजोर होने की भी चिंता होने लगती है। वांट्स इविल, डिल्यूजन, फियर, पॉवर्टी, और चिंता होने लगता है, डिल्यूजन, वांट्स इविल कम टू, आगे आने वाले समय में होने लगती है। वीकनेस होने की चिंता, वीक होने की चिंता, मनी एनर्जी, नॉलेज, पावर की चिंता होने लगती है, वीक होने की। टेलीविजन थिन इज गेटिंग एंजाइटी बिजनेस अबाउट हिज, वो हमेशा रिच रहना चाहता है। जैसे ही उसे लगता है कि उसके रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, तब वो उसकी तरफ ध्यान देने लगता है और केयरफुल हो जाता है। यहाँ पे अलर्ट एक रूब्रिक और केयरफुल। जब उसे लगता है कि वो अभी भी उसको कंट्रोल, अब उसको जब उसे लगता है कि वो अभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब उसे फेल होने का डर सताने लगता है। और जब दिखता है हमेशा वेल्थ दिखाएगा, लेकिन जब उसे लगता है कि मैं अब अपने आप को, जैसे ये कमर दर्द वाला पेशेंट, जब तक उसको लग रहा था कि मैं कर लूंगा, लेकिन ये बार बार होने से अब क्या हो रहा है कि वो उस ढंग से अपने काम को नहीं देख पा रहा है। अब लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा किसी दिन, बैठ जाना पड़ेगा मेरे को। तब उसको अलर्ट हो जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब उसे फेल होने का डर लगता है। और उसी डर के कारण उसके स्वास्थ्य में भी डिटोरिएशन आने लगता है। फियर फेलियर ऑफ, हेलमेट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, delirium business talks of, ठीक है सर। In this state, when patient visit the physician, he talks about his inability to cope up with his business affairs। मतलब अब उस ढंग से काम नहीं कर पा रहा या ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, जैसे ये इंजीनियर का, ये अचानक से आधा घंटा तक हो जाता है, तो वैसा करता रहता हूँ, लेकिन वैसा ढंग तो आया क्यों? अगर ये करता ही रहता तो आपके पास आया क्यों? है ना? तो कहीं न कहीं इसके दिमाग में तो आया कि भई एक दिन आगे आने वाले समय में तो ये फेलियर हो जाएगा, ठीक है? तो तब उसको लगता है कि मेरे को ये ठीक करना है। तो जी, यहीं पे कि डॉक्टर साहब आप मेरे को हेल्प करो इसको ठीक करने के लिए, और क्या? इसीलिए तो आया हूँ। ये टॉकिंग बिज़नेस ऑफ, बीमारी के एक्यूट स्टेट में सर्वर पैटर्न पेशेंट शांति और संयम, कंपोज़र वाली अवस्था में रहता है। वाली अवस्था चाहता है। इस समय भी वह अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देता है और शांत अवस्था चाहता है, जैसा कि ऊपर के केस में है। जब तक तकलीफ ज्यादा होती है तब तक वो हर चीज को हटाकर डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है। जब तक असुविधा, जब तक तकलीफ ज्यादा होती है तब तक वो हर चीज को हटाकर डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है। पर जब काम को खत्म करने की बात आती है, किंतु ये देखिए, जब जब उसको इसमें तकलीफ शुरू होती है, कोई भी तकलीफ शुरू होती है, तब वो उस चीज को हटाओ हटाओ यार, आज नहीं करूंगा, कल कर दूंगा, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा, थोड़ा शरीर ठीक हो जाएगा, थोड़ा शांति से बैठने दो मेरे को, फिर कर दूंगा। लेकिन अगर वो
शरीर खराब भी है, तकलीफ हो रही है, तब भी अगर पर जब काम को खत्म करने की बात आती है, आज ये काम खत्म कर देना है, ये फीलिंग जब आ जाता है या माथा सर पे वो चीजें आ जाती है सामने में, तब उसको लगता है कि नहीं, आज इसको खत्म करना है, आज नहीं किया काम करना। पर जब काम को खत्म करने की बात आती है, तब भी अगर वो थका हुआ है या देखता है कि काम करना मुश्किल है, फिर भी वो अनविलिंगली उस काम को कर देता है। ठीक है, अनविलिंगली ही सही, लेकिन वो उस काम को, क्योंकि ये काम मस्ट है, करना है। तब अगर वो बीमार भी है तो भी खत्म कर देता है, उस काम को खत्म करके छोड़ता है। उस समय उसको मतलब रेस्टमेंट मतलब आराम नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करता है काम को। जब उसके सर पे आ जाता है कि नहीं, आज इसको फिनिश करना ही करना है, तो सल्फर का पेशेंट जब एक्यूट स्टेज में भी उस काम को फिनिश कर देता है। द पेशेंट बार्गेन बिटवीन द सफरिंग एंड हिज बिजनेस। ठीक है, यहाँ डायनिया की तरह चूजेस द लेसर एविल नहीं है, यहाँ पे बार्गेन है बिजनेस और सफरिंग में। ठीक है, डायनिया के सामने क्या है, दोनों ही खराब है, लेकिन उसमें से जो कम खराब है उसको चुनना है। यहाँ पे क्या है, बिजनेस और बिजनेस सफरिंग और बिजनेस में बार्गेनिंग है कि नहीं, ये काम आज करना ही है, नहीं तो क्या होगा कि कुछ हमारा बिजनेस में घाटा हो जाएगा या दूसरे को प्रॉब्लम। ये क्यों करता है, ये बिजनेस और सफरिंग में बार्गेन क्यों करता है, क्योंकि किसी और का काम है, मेरे नहीं करने से उसको तकलीफ हो जाएगा। ये केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट। इसका जो सफरिंग और ये बिजनेस में जो बार्गेनिंग है, वो क्यों करता है, अपने लिए नहीं है कि मैं अगर इसका ये वाला आज काम नहीं करूंगा तो बहुत लोगों का काम रुक जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बार्गेनिंग, बार्गेन एंड केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट। ঠিক আছে, এরকম নাই যে সবকিছু ছেড়েই দিবে, এরকম হয় না, ছাড়বে না, যখন মাথায় চলে আসবে। ঠিক আছে, চলো। ঠিক আছে, হ্যাঁ।